Good afternoon, students. Good afternoon, students. We are studying now chapter number 3rd. Chapter name is Synthetic Fibers and Plastics. A very fine, a very thin, thread-like strand from which cloth is made is called a fiber. एक बहुत ही थिन, बहुत ही पतला थ्रेड लाइक स्ट्रैंड यानी धागे जैसी स्ट्रक्चर, धागे जैसा स्ट्रैंड यानी तंतु फ्रॉम विच क्लॉथ इज मेड, जिससे कपड़े बनते हैं, इज कॉल्ड ए फाइबर, उसको फाइबर कहा जाता है. फैब्रिक मीन्स क्लॉथ, अनस्टिचड क्लॉथ यानी बिना सिले कपड़े आर कॉल्ड फैब्रिक. फैब्रिक इज मेड बाय वीविंग और knitting लॉन्ग ट्विस्टेड थ्रेड कॉल्ड yarn मेड फ्रॉम फाइबर्स. फैब्रिक का फॉर्मेशन yarn से होता है, yarn के वीविंग से फैब्रिक बनता है. So first of all fiber, then fibers are twisted together to make yarn, then the yarn are woven for making fabric, and then fabric is stitched into cloth. Okay, so you can understand like this: first fiber, second yarn, third fabric, and fourth one is the cloth. These are the step of making clothes from the fibers. There are two types of fibers: natural fibers, synthetic fibers. The fiber obtained from the plants and animal are called natural fiber. जो फाइबर्स प्लांट और एनिमल से प्राप्त होते हैं उन्हें नेचुरल फाइबर कहा जाता है. लाइक एज प्लांट फाइबर्स आर कॉटन, फ्लैक्स एंड जूट. कॉटन प्लांट से कॉटन वूल प्राप्त होती है, फ्लैक्स प्लांट से लिनन प्राप्त होता है, जूट प्लांट से जूट प्राप्त होती है. एंड फ्रॉम द एनिमल्स लाइक sheep, yak, rabbit, goat, camel, etc. we are getting wool from these animals. And silk is obtained from the silkworm. These are the plant and animal fibers. So these are the natural fibers. Synthetic fibers are man-made fibers. Examples are rayon, nylon, polyester, acrylic. These are the synthetic fibers. These are made up from the petrochemicals. So in their structure, the polymer and polymerization is important. So we are studying now about polymer. What is a polymer? Polymer is a very big molecule. Polymer is a very big molecule, एक बहुत बड़ा molecule formed by the combination of large number of small molecules. जो अधिक संख्या में large molecules के combination से बनता है, ऐसा large molecule, ऐसा big molecule polymer कहलाता है. And the small molecules that are the repeating units in the polymer are called monomer. यानी जिन small molecules के combination से polymer बनता है, that is called monomer. Okay, so what is the difference between monomer and polymer? Monomer is a small molecule and a polymer is the combination of monomers. Polymers are also two types: natural polymer and synthetic fiber. As cotton fiber is made of natural polymer called cellulose. Cellulose से cotton fiber बनता है. Cellulose is a polymer which is made up of a large number of small glucose molecules. तो cellulose में जो monomer है, that is glucose, joined one after. The walls of all plant cell are made up of cellulose. Cellulose यानी जिस जो plant cell होती है उसकी जो wall होती है उस cellulose से बनी होती है. You can see it in the wood. जो लकड़ी होती है वो cellulose ही होती है. So wood contains a large amount of cellulose polymers. Thus polymer occur in nature to इस प्रकार से. Thus polymer occur in nature to इस प्रकार से नेचर में polymers होते हैं. नाइलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक, पॉलीथीन, polyvinyl chloride, PVC, bakelite, melamine are synthetic polymers. For example, nylon is made up of nylon polymer, which two different types of molecules or monomers are combined alternately to form long chain. नाइलॉन में दो प्रकार के मोनोमर्स अल्टरनेटली एक दूसरे से जुड़ करके
एक लार्ज पॉलीमर बनाते हैं, एक बिग मॉलिक्यूल बनाते हैं, पॉलीमर बनाते हैं. ओके. So synthetic fibers now, we are taking their examples here. First is rayon. How rayon is produced? We are studying now how rayon is produced. You know all that the synthetic fiber are obtained from the petrochemicals. Petrochemicals means the chemicals that are obtained from the crude oil. Okay, rayon. Rayon is the first artificial fiber that is made from the wood pulp. रेयन जो फर्स्ट आर्टिफिशियल फाइबर है वो वुड पल्प से बनता है. सबसे पहले ये बनाया गया आर्टिफिशियल फाइबर, जो फर्स्ट आर्टिफिशियल फाइबर है वो रेयन है और ये वुड पल्प से बनाया गया. हाउ इट इज, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑफ रेयन वी आर स्टडिंग नाउ. Attempts were made to make silk artificially, which would be cheaper than natural silk. तो सबसे पहले प्रयास किया गया आर्टिफिशियल सिल्क बनाने का जो नेचुरल सिल्क से सस्ती हो. टुवर्ड द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, इन 19th सेंचुरी के अंत में साइंटिस्ट वर सक्सेसफुल इन ऑब्टेनिंग फाइबर हैविंग प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट ऑफ सिल्क. तो साइंटिस्ट को सफलता मिली सिल्क जैसे फाइबर्स, सिल्क जैसे प्रॉपर्टी रखने वाले फाइबर को प्राप्त करने में. दिस फाइबर वाज कॉल्ड रेयन. इसको रेयन कहा गया. रेयन इज ऑफन रिगार्डेड एज आर्टिफिशियल सिल्क. रेयन को प्राय आर्टिफिशियल सिल्क के रूप में जाना जाता है. रेयन इज मैन मेड फाइबर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द नेचुरल रॉ मटेरियल कॉल्ड सेलोज बाय केमिकल ट्रीटमेंट. तो जो सेलोज है जो वुड में प्रेजेंट है उसके केमिकल ट्रीटमेंट से ये रेयन जो मैन मेड फाइबर है बनता है. सेलोज रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग रेयन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द वुड पल्प. जो सेलोज रेयन बनाने के लिए रिक्वायर्ड है वो वुड पल्प से प्राप्त होता है. सो वी कैन ऑल्सो से दैट, हम कह भी सकते हैं रेयन इज ऑब्टेन्ड बाई, हम ये भी कह सकते हैं रेयन इज ऑब्टेन्ड बाई द केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प. कि रेयन जो होता है वुड पल्प के केमिकल ट्रीटमेंट से बनता है. रेयन इज प्रोड्यूस्ड एज फॉलोज. ये पॉइंट्स प्रोसेस बताई है कैसे रेयन प्राप्त करते हैं वुड पल्प से. वुड पल्प इज डिजोल्व इन एन अल्कलाइन सॉल्यूशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन. तो वुड पल्प को सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन या किसी अल्कलाइन सॉल्यूशन, बेसिक जो कोई बेसिक सॉल्यूशन होता है उसमें डिजोल्व किया जाता है टू फॉर्म स्टिकी लिक्विड कॉल्ड विस्कोस. इसको इसमें डिजोल्व करने से एक चिपचिपा लिक्विड बन जाता है, इसे विस्कोस कहा जाता है. विस्कोस इज फोर्स्ड टू पास थ्रू ए टीनी होल्स. विस्कोस इज फोर्स्ड टू पास थ्रू द टीनी होल्स ऑफ मेटल सिलेंडर. तो इस विस्कोस को मेटल सिलेंडर के टीनी होल्स से गुजारने के लिए पास करने के लिए फोर्स किया जाता है इनटू सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. किस इसको इस फाइन सिलेंडर जो मेटेलिक सिलेंडर है उसके टिनी होल्स से गुजारने के बाद सल्फ्यूरिक एसिड में डिप करवाया जाता है. सो इट कैन बी हार्डेंड, ताकि जो फाइबर बन रहा है वो कठोर हो जाए. व्हेन ए सिल्क लाइक थ्रेड ऑफ रेयन इज फॉर्म्ड. इस प्रकार से रेयन का सिल्क जैसा थ्रेड बन जाता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल द वुड पल्प इज डिजोल्व्ड इनटू द alkaline solution or sodium hydroxide solution, and then after this sticky solution is, that is called viscose, is passed through a metallic cylinder that is having small pores. From passing the fine pores, the viscose material converted into very fine threads, very fine fibers. These fibers are then dipped into sulfuric acid to make them hard. To make them hard means उनको कठोर बनाने के लिए.
Then after the rayon fibers are obtained that are similar to the silk fiber. So this was the rayon making process from the wood pulp. Since rayon is made from naturally occurring polymer present in wood pulp, therefore rayon is neither a fully synthetic fiber nor a fully natural fiber. तो रेयन क्योंकि ये वुड पल्प या वुड पल्प से बना है, इसलिए ये कम्प्लीटली सिंथेटिक फाइबर नहीं है और ना ही ये फुल्ली नेचुरल फाइबर है, क्योंकि ये मैन मेड है, लेकिन ये कम्प्लीटली सिंथेटिक जो रॉ मटेरियल है उससे नहीं बना। ये वुड पल्प से बना, नेचुरल मटेरियल से बना है, सो इट इज नॉर completely synthetic and neither fully natural fiber. It is a semi-synthetic fiber. Rayon is different from purely synthetic fiber because it is obtained from natural material wood pulp. Rayon is different from purely synthetic fiber because it is obtained from natural material. रेयन जो होता है सिंथेटिक फाइबर से कम रेयन इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रूली सिंथेटिक फाइबर. रेयन जो वास्तविक सिंथेटिक फाइबर है उनसे अलग है बिकॉज इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल मटेरियल, क्योंकि नेचुरल मटेरियल से बनता है. ऑल्थो रेयन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्स कॉल्ड वुड पल्प, क्योंकि ये नेचुरल रिसोर्स से बनता है, दैट इज वुड पल्प. Yet it is said to be a man-made fiber. इसलिए इसको man-made fiber, यद्यपि इसको man-made fiber कहा जाता है. Yet means यद्यपि. This is because it is obtained by the chemical treatment of wood pulp in factories. क्योंकि this is obtained from the chemical treatment of wood pulp in factories, क्योंकि ये wood pulp के chemical treatment से फैक्ट्री में बनता है. Rayon fiber is chemically identical of cotton but it has shine like silk. ये जो रेयन है वो केमिकली कॉटन आइडेंटिकल टू कॉटन, यानी कॉटन के जैसा ही है. यदि केमिकल की बात करें तो इसमें जो केमिकल्स, इसका जो कंपोजिशन है वो कॉटन जैसा ही है, लेकिन इसमें सिल्क की जैसी चमक होती है. सिंस रेयन resembles silk in appearance, therefore rayon is also called artificial silk. क्योंकि रेयन जो होता है उसमें सिल्क जैसी चमक होती है, इसलिए यह सिल्क जैसा वो दिखाई पड़ता है, इसलिए इसे आर्टिफिशियल सिल्क कहा जाता है. रेयन इज चीपर देन नेचुरल सिल्क. ये नेचुरल सिल्क से सस्ता है. कैन बी वोवन इनटू सिल्क फाइबर, और इससे सिल्क कैन बी वोवन इनटू सिल्क फाइबर्स, और इसे सिल्क फाइबर्स के साथ भी बुना जा सकता है. कैन बी वोवन लाइक सिल्क फाइबर, और सिल्क फाइबर की तरह से इसको बुना जा सकता है. रेयन कैन ऑल्सो बी डाइड इन वैराइटीज कलर. रेयन डिफरेंट कलर्स में रंगा भी जा सकता है.